Dear students of class 11, I welcome all of you to this video. In this video, we will study about the poem A Photograph. This poem was composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson was a good teacher. She was a favorite journalist and also an editor. She was a modern poetess. She was born on 20th of May 1924 in England. Now we will study about the poem Photograph. This is a short poem, and now look at the lines of the poem. Stanza 1. Look at the lines. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. The photograph, in this poem, there was a photograph. इस कविता में एक फोटोग्राफ के संबंध में पोएटिस ने बातचीत किया है। फोटोग्राफ, जैसे कि हम फ़ोटो खींचते हैं कई बार अकेजन्स पर, अवसरों पर, और फिर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। कई सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका भी फ़ोटोग्राफ हम कई बार क्लिक करते हैं और अपने पास रखते हैं। ये फ़ोटोग्राफ जब पुराने हो जाते हैं तो हमें अतीत की याद दिलाते हैं, पुराने समय की याद दिलाते हैं। ऐसा ही एक फ़ोटोग्राफ था, एंड इन दिस फोटोग्राफ पोएट्स मदर and her two cousins were there in the photograph. The cardboard का मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ से ही है। The cardboard shows, the photograph shows me means poetess. The poetess says that the photograph shows me how it was when the two girl cousins went paddling. How it was it describes those days. The photograph describes those olden days when the two girl cousins went paddling. Two girl cousins. In this photograph, there was poetess, writer's mother and her two cousins. Cousins went paddling. They were walking near the sea, and when the waves of the sea were coming to them, they somehow managed to walk in the water. Paddling means walking in shallow water. So they were walking. This photograph was of near the sea. Each one holding one of my mother's hands. Both the cousins of my mother were holding a hand of my mother. Each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl. And she means the mother, poet's mother. Poet's mother was the big girl, and some 12 years or so, and her age was about of 12 years, and those cousins were smaller than the mother, poet's mother. All three stood still to smile through their hair. All the three girls,
poetess mother and her two cousins were standing still. They were not moving their hands and legs, and they were looking forward through their hair. Means perhaps wind was blowing there near the sea, and their hair were falling on their face. संभवतः all the three stood still to smile through their hair. Through their hair, इस यहाँ पर अपने बालों से हो करके वे सामने की ओर देख रही थी। इसका मतलब है कि वहाँ पर हवा संभवतः चल रही थी, इसलिए उनके बाल उनके चेहरों पर आकर फैल रहे थे। एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, और वे सामने की ओर देख रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, दे वर लुकिंग एट देयर अंकल। माई मदर एंड हर cousins were looking towards a man who was holding a camera and was perhaps trying to click their photograph. वे लोग एक व्यक्ति की ओर देख रही थी और वह व्यक्ति कैमरा लिए हुए था। वो उसी व्यक्ति की ओर देख रही थी और वह व्यक्ति उनका फोटोग्राफ लेने का प्रयास कर रहा था। A sweet face, my mother's. Here the poetess says that the face of my mother was very sweet. A sweet face, my mother's. पोएटेस यहाँ कहती है कि मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत सुंदर था। That was before I was born. और ये तब का चेहरा था मेरी माँ का कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी। ये उस समय का चेहरा था पोएटेस की मदर का, जबकि उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। That was before I was born. And the sea which appears to have changed less. वहाँ पर फोटोग्राफ में वे लड़कियाँ दिख रही थी और समुद्र का किनारा दिख रहा था। तो समुद्र का किनारा बहुत कम परिवर्तित हुआ था। आज भी समुद्र का किनारा बहुत कुछ उसी रूप में था, जबकि ये जो फोटोग्राफ जिन लड़कियों का खींचा गया था उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। कहने का मतलब है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनमें कम परिवर्तन होता है। वे बहुत कुछ एक जैसी ही बहुत लंबे समय तक दिखती हैं, और मनुष्य के अंदर बड़ा परिवर्तन होता है, तेज़ी से परिवर्तन होता है, बिकॉज देयर लाइफ इज़ शॉर्ट। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. और वह समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ महसूस हो रहा था, वह the sea was washing their feet. समुद्र की लहरें उठ रही थी और उनके पैरों के पास आ करके उन्हें धो रही थी। उन पैरों को जो ट्रांसिएंट थे। ट्रांसिएंट मीन्स चेंजेबल, जो कि चेंज होने वाले थे, ज़्यादा टिकाऊ नहीं थे। वे संभवतः चहलकदमी भी कर रही थी, तो वहाँ भी पैर बदल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे। और मनुष्य, ये फीट्स यहाँ मनुष्य की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो स्थिर नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है और बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है। Stanza 2. Some 20-30 years later, लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, she had laughed at the snapshot. जब भी वह ये फोटोग्राफ जब खींचा गया था, लिया गया था, उससे 20 या 30 वर्ष बाद, whenever my mother looked at the photograph, जब भी मेरी माँ उस फोटोग्राफ को देखती थी, she would laugh, तो हंसा करती थी और कहा करती थी, she, बेटी, देखो बेटी को, and डॉली, और डॉली को देखो, she would say, वो कहा करती थी, and look how they dressed us for the beach, और कहा करती थी, देखो
हाउ कैसे, दे मीन्स माई देयर पेरेंट्स ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, समर हॉलीडेज़ में समुद्र के किनारे जाने के लिए और हॉलीडेज़ सेलिब्रेट करने के लिए कैसे हमारे पेरेंट्स हमें कपड़े पहनाते थे, कैसे हम ड्रेस्ड होते थे, ये कहा करती थी पोएटेस मदर। जब भी 20-30 साल बाद जब भी वह देखा करती थी इस फोटोग्राफ को। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो सी हॉलीडे, वो समुद्र के किनारे पर बिताया गया वो गर्मी की छुट्टियां, ये उसके लिए मैं फॉर माई मदर, वो पास्ट था, उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए मेरे मदर की हंसी, जो वो हंसा करती थी उस फोटोग्राफ को देख करके, वो मेरे लिए अतीत की बात थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही पास्ट दुखद थे। और इन द पीरियड ऑफ टाइम, इन द पैसेज ऑफ टाइम सच लॉसेज ईजिली कम, ऐसे लॉस, ऐसे नुकसान मनुष्य के जीवन में समय के साथ बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत दुखद हुआ करते हैं। ईयर स्टैंजा 3, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब तो वह फोटोग्राफ में दिखने वाली मेरी माँ, द पोएट सेज, इज नाउ नो मोर, अब वह जीवित नहीं है, और उनको मरे हुए इतने वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष संभवतः उन्होंने जिया था अपना जीवन। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ऐसी परिस्थिति में, इन सच सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे सर्कमस्टेंस में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। उसी प्रकार मेरे पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं है ऐसे सर्कमस्टेंस में। इन सच ए सिचुएशन when my mother is not living, when my mother is not with me, तो there is only silence, तो फिर शांति है। and that silence is so powerful, और ये साइलेंस इतनी ताकतवर है, that silences me, कि वह मुझे भी शांत कर देती है। That's all.